So good evening once again. Already we have seen last time the concept of the magnetic induction at a point along the axis, which is given by the formula B is equal to mu naught upon 4 pi into m upon 2m upon r cube, right? And also we have seen the formula for finding the magnetic induction at a point along the equator. देखो उसके अंदर 2 नहीं आता है, तो its formula is actually mu naught upon 4 pi into m upon r cube simply. और उसको यूज करके हमने मैग्नेट की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला ढूंढ के निकाला था, कल डिराइव किया था। और वो फॉर्मूला इस तरह से था, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P which is at a distance r from the center of the magnet, and the line joining the center of magnet and the point P just makes an angle theta with the axis of the bar magnet. Then the magnetic induction at point P is actually given by the formula mu naught upon 4 pi into m upon r cube into रूट के अंदर 3 cos square theta plus 1, राइट है। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कल डिराइव किया था, और इवन ये भी हमने देखा था कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली डायरेक्टेड at an angle alpha with the line joining the center of the magnet and point P, and this alpha is actually given by the special formula which is actually tan alpha is equal to half of tan theta, करेक्ट है। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखी थी लास्ट टाइम। यस, सो लेट अस सी द नेक्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। अभी ये चैप्टर एक्चुअली खत्म होने ही आया है, मैं मोस्ट प्रोबेबली या तो आज या तो फिर कल मैक्सिमम खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि दो ही टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर अभी यहाँ पे बाकी है। दैट इज द फर्स्ट इज द गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, और द सेकंड इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के खुद के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ चीजें हमको यहाँ पे जरूर डिस्कस करनी है। ओके, तो चलो ठीक है, लेट अस गो टू द बोर्ड एंड सी द डिटेल्स। Yes, I hope you can see the screen, clean screen. Okay, white screen. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ अगर पैचेस अगर आते हैं तो बताते जाओ, ठीक है। यस, ओके, तो देखो यहाँ पे what is we have to discuss here is about Gauss theorem in magnetism. Okay, first of all we'll just try to recall what is Gauss theorem in electrostatics. ठीक है, हमको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस थ्योरम क्या कहता है, तब जाके हम समझ सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन इन मैग्नेटिज्म एक्चुअली। यस, जस्ट विल सी द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, and then we will be able to understand what is Gauss theorem in magnetism actually. Okay, so see what is Gauss theorem in electrostatics. What does it tells us? If suppose there is a there are some number of charges, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में पैदा होता है, राइट। सो इफ सपोज वी हैव अ चार्ज q1 at this point plus positive q1 here, and suppose there is another charge plus q2 kept at this point, and here suppose there is a charge q3 or plus q3 kept at this point, and suppose we have a closed surface which encloses all these charges here. तो इन सभी चार्जेस को इनक्लोज करने वाला एक क्लोज सरफेस हमको कंसीडर करना है। तो इन दिस केस इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, क्योंकि क्या होगा देखो यहाँ पे इस चार्जेस की वजह से हर पॉइंट में से एक फ्लक्स पास होगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज इस तरह से इस तरफ फ्लक्स पास हो रहा है, इस पूरे क्लोज सरफेस के में से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा, and whatever the flux is passing out through this closed surface
is just given by the Gauss theorem. तो Gauss theorem क्या कहता है, देखो ठीक से, if suppose there are number of charges kept in this closed surface in any position in this way, then the Gauss theorem tells us simply that the flux passing through the whole closed surface is actually going to be equal to 1 upon epsilon naught into summation of charges, right? Algebraic summation of all the charges enclosed by that surface. That means the flux here is actually going to be equal to 1 upon epsilon naught into the sum of all charges. That means q1 plus q2 plus q3 and even q4 and so on up to dash 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 up to qn, whatever it may be present there in the interior of this closed surface. Okay, तो इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस यहाँ पे रहेंगे उन सब का एडिशन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा और उसको 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करने से हमको ये फ्लक्स मिल जाएगा, बिल्कुल. सो एंड ऑब्वियसली फ्लक्स इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ electric intensity and the area. In more detail, the total electric flux is actually going to be the relation of electric intensity and area and even the dot product of that. So you can just get this as E bar dot ds bar is nothing but the flux. So this integration of b bar e bar dot ds bar, just forget about this. Just we can just say that the flux here, electric flux here, is actually going to be equal to 1 upon epsilon naught into summation of all charges. Even if suppose there is a negative charge present here, suppose यहाँ पे minus q4 यहाँ पे present है, ये देखो ठीक से minus q4, even minus q5 is also there, then those charges will also contribute negatively here in the sum. So in this case, we can just say that this flux, total flux passing out through this closed surface will actually be given by the formula q1 1 upon epsilon naught times q1 plus q2 plus q3 minus q4 and minus q5 actually. Okay, in this way. So अगर 5-6 चार्जेस है और उसमें से 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो उस केस में हमको ये जो पॉजिटिव चार्जेस है उनका कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा. लेकिन जो चार्जेस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उनका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट है. तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको ये मिलता है कि द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. If suppose there is a charge which is outside this surface, suppose q6 is going to be outside, that will not be included here in this bracket. ठीक है. So ये flux जो है वो flux के अंदर ये बाहर वाला charge include नहीं किया जाएगा. Only the charges which are in the interior will just include here in the sum. Okay, now we can just be able to find out what is Gauss theorem in magnetism means. Okay, so अभी यहाँ पे Gauss theorem in magnetism, what does it tells us? See, suppose that there is a closed surface once again of any shape in this way. Okay, इस टाइप का एक closed surface हमारे पास suppose है और इस closed surface के अंदर कुछ magnets है. अभी यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से याद रखो कि magnetism के अंदर हमको magnets ही मिलते हैं, ठीक है. मैग्नेटिक पोल्स कभी नहीं मिल सकते हैं. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि समझो एक मैग्नेट है, ये देखो सपोज एक मैग्नेट हमारे पास है, सपोज दिस इज द मैग्नेट. Okay, suppose this is a magnet and its north pole and south pole suppose are already there. Okay, this is suppose its south pole and this is going to be its north pole. Okay, now if suppose we cut this magnet in two parts. Okay, अगर जैसे हम यहाँ पे इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में कट कर देते हैं, सपोज ये उसके दो टुकड़े बन गए. ओके, तो जैसे ये दो टुकड़े बनते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, देखो यहाँ पे जो साउथ पोल था वो तो वहां पे ही रहेगा बिल्कुल, और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल था वो भी वहां पे रहेगा जरूर. लेकिन जहाँ पे हमने इसको कट किया तो उस पॉइंट पे और एक एक्स्ट्रा साउथ और नॉर्थ पोल तैयार हो जाता है. तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है. ओके, इसका मतलब एक मैग्नेट को कट करने से हमको
दो अलग अलग पोल्स नहीं मिल रहे, बल्कि दो अलग अलग मैग्नेट्स ही मिल रहे हैं। इवन अगर सपोज हम इस मैग्नेट को भी अगर कट करते हैं, दो पार्ट्स में अगर कट करते हैं, ये देखो इस तरह से, ये दो पार्ट्स में हमने इसको कट कर दिया, तो जो दो टुकड़े हमको मिलेंगे वो दो टुकड़े मतलब दो पोल्स नहीं, कभी नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक्चुअली मैग्नेट्स ही रहेंगे। यहाँ पे ये जो साउथ पोल है तो वो जहाँ पे था वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल था तो वो भी वैसे ही रहेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको कट किया वहां पे दो एडिशनल पोल्स तैयार हो जाएंगे इधर। यहाँ पे नॉर्थ पोल तैयार हो जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल एक्चुअली तैयार हो जाएगा इस तरह से। सो वी कैन जस्ट गो ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस इंडेफिनेटली। अगर इसको भी हम अगर कट करते हैं दो पार्ट्स में, तो भी हमको क्या मिलेगा, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस तरह से, और यहाँ पे फिर से साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम कट करते हैं वहां पे फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स इफ वी सपोज कीप अप, इफ यू जस्ट ट्राई टू आइसोलेट अ पोल, तो ये पोल को अगर हम सपोज आइसोलेट करने के लिए ट्राई करते हैं, इसको अगर हम यहाँ से भी अगर कट करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोज इस साउथ पोल को अगर अलग करने के लिए इस पॉइंट पे करते हैं, तो जो पार्ट हमको मिलेगा, सपोज ये जो पार्ट है इसको मैंने कट करने के बाद, ये देखो कट करने के बाद, सॉरी, ये बहुत छोटा सा मैग्नेट तैयार हो गया। ये देखो इतना छोटा मैग्नेट तैयार हो गया। अभी इस ये एक्चुअली मैग्नेट है, पोल कभी नहीं मिलेगा हमको। जो जितना भी छोटा पार्ट हम इसको कट करेंगे ना, तभी भी यहाँ पे साउथ पोल तो रहेगा ही, लेकिन इसके बिल्कुल साइड में और एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो ही जाएगा। इसका मतलब व्हाट कैन वी गेट इज अ मैग्नेट एंड नेवर अ पोल। इसको कट कभी नहीं कर सकते हम, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यस वी हैव गॉट अ साउथ पोल सेपरेटली, कभी नहीं। ठीक है, वी कैन जस्ट break this magnet so as to get another magnet. We can continue to break the magnets in magnets itself. तो मतलब एक मैग्नेट को हम मैग्नेट्स में ही कट कर सकते हैं। मैग्नेट का कभी भी साउथ पोल अलग और नॉर्थ पोल अलग कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि वी कैन नेवर सेपरेट आउट द मैग्नेटिक पोल्स। the magnetic poles are actually they doesn't exist in the nature, in reality। रियल में ऐसा कोई मैग्नेटिक पोल्स ऐसे होते ही नहीं है। ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि यस वी हैव फाउंड आउट दिस साउथ पोल और वी हैव फाउंड आउट द नॉर्थ पोल। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। मैग्नेट के अंदर जो ये दो पॉइंट्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहलाते हैं, दे आर जस्ट द पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिज्म appears to arise from। मतलब वो ऐसे दो पॉइंट्स है जहां पे मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या जहां से मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट होता हुआ नजर आता है। एक्चुअली ओरिजिनेट होता नहीं है एक्चुअली, मतलब ऐसे कोई दो पॉइंट्स होते नहीं है, फिजिकल पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं होते हैं, या फिजिकल ऐसा कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते वहां पे जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। जरूर, बट द मैग्नेट ओवरऑल मैग्नेट बिहेव्स एज इफ it has two poles, it has two the special points, ठीक है, which are called as south poles and north poles, but they are actually doesn't exist in the nature, in the reality। ओके, तो इसलिए हमको जब भी हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नेट ही मिलता है, पोल कभी नहीं मिलते हैं। तो ये बात याद रखो ठीक से, ठीक है। तो अगर ये याद रखते हो, तो अभी अगर सपोज हम यहाँ पे देखते हैं गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, देन वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट if suppose we have different magnets which are just kept in this magnetic field here, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सॉरी इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर हमने अलग अलग मैग्नेट्स रखे हुए हैं इस तरह से, ये सपोज मैग्नेट यहाँ पे हमने रखा हुआ है इस तरह से, ओके, और सपोज कि और एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, मे बी इन एनी पोजिशन, कौन से भी पोजिशन में होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो सपोज these are the magnets which are kept in this closed surface here। Okay, and suppose that the magnets has, every magnet has two poles। Suppose this is the south pole and this is going to be the north pole here, this is here the south north pole, and here it is the south pole here, and this is the north pole and south pole here in this way। Okay, अब ये भी तुमको पता है ऑलरेडी कि मैग्नेटिक पोल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है, तो वो हमेशा
नेगेटिव कहलाता है और नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव कहलाता है. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है तो वो -m से डिनोट किया जाएगा. सो यू कैन जस्ट गेट दैट दिस -m1 हियर एंड दिस विल बी -m2 हियर. साउथ पोल का नेगेटिव होगा इसलिए, और इस साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको -m3 बोल सकते हैं जरूर. और अभी जो नॉर्थ पोल्स है तो नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है, पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है. सो द नॉर्थ पोल, ये फर्स्ट नॉर्थ पोल का जो पहले मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम +m1 बोल सकते हैं जरूर. इसका जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हम +m2 बोल सकते हैं बिल्कुल. और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है इसको +m3 बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर ये इस तरह से हमने इसको डिनोट कर दिया तो अभी अगर हम सपोज ये गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम जो मैग्नेटिज्म के अंदर अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो यही स्टेटमेंट हमको यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट डज दिस गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म टेल्स अस? इट टेल्स अस दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स passing out through any closed surface is actually given by mu naught times of the algebraic sum of all the magnetic poles. Okay, magnetic poles, pole strength which are enclosed by that surface here. Okay, so if we just elaborate this in detail, so magnetic flux passing out will be actually equal to mu naught times of summation of all these magnetic poles, pole strengths. Okay, अभी इसमें एक बात चेक करो यहाँ पे ठीक से कि ये जो पॉजिटिव जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, मतलब नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ होता है उसकी वजह से जरूर ये जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है तो वो आउट पास होगा. ठीक है, बाहर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा. इस पॉजिटिव मतलब नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है. लेकिन अगर हम देखेंगे ठीक से तो यहाँ पे नेगेटिव पोल्स भी तो है, मतलब साउथ पोल्स भी तो है. तो इन साउथ पोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक्चुअली अंदर की तरफ रहेगा. इस तरह से देखो, if you just consider the magnetic flux due to the south pole here, it will be directed in the inwards. And that's why what happens exactly is, if you just try to find out the overall flux passing through this whole magnet here or whole closed surface here, तो इस पूरे क्लोज सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स है तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी पोल्स का पोल स्ट्रेंथ कंसिडर करना पड़ेगा. और अगर वो हम करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा m1 minus m1 again plus m2 minus m2. ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है मतलब नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा. सिमिलरली इस मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव रहेगा और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होगा. और उनके उसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव उसके हिसाब से. और फिर ये थर्ड मैग्नेट जो है तो उसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी +m3 एंड -m3 यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे हमको इस तरह से ये इक्वेशन मिलेगा +m3 एंड -m3. and if we just add all these things here then we can just observe that this +m1 will just cancel with -m1, +m2 will just cancel with -m2, and +m3 will just cancel with -m3 here. and this will happen always, हमेशा ऐसा होगा. क्यों? क्योंकि magnet always contains two poles, south and north of equal magnitude. करेक्ट है? मैग्नेट मतलब क्या होता है एक्चुअली? इट इज द मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल and that's why it contains two poles, south and north, of equal magnitudes or equal pole strengths, and that's why their pole strengths will just cancel each other, being one of them to be north and other one to be south. So contribution of one of them will be positive and the contribution of other one will be negative. And hence we can just say that this magnetic flux passing out through any closed surface is always equal to mu naught times of 0. But mu naught times of 0 is going to be 0 only. So we can just say that this flux is actually going to be 0. This simple statement is called as Gauss theorem in magnetism. अभी तुम बोलेंगे ऐसा कोई थ्योरम होता है क्या? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे होता है. और दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम.
इन मैग्नेटिज्म. बट एक्चुअली चलो ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली डिफाइंड एज. अब देखो ये तुमको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया. करेक्ट है. सो वी कैन जस्ट गेट दैट दिस फ्लक्स विल एक्चुअली बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया. करेक्ट है. लेकिन अगर ये मैग्नेटिक इंडक्शन अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, नो डाउट. लेकिन अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक पर इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में, एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में हमको बांटना पड़ेगा और हर एक एलिमेंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो निकाल निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा. सो दैट मींस वी विल हैव टू दिस इंटीग्रेशन, कंसीडर द इंटीग्रेशन ऑफ b into ds in this case here. एंड इवन अगर डायरेक्शंस भी अगर अलग अलग है तो उस केस में हमको डॉट प्रोडक्ट ऑफ b बार एंड ds बार कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ फ्लक्स which already we have talked about in the first lecture. If you just remember, ये फर्स्ट लेक्चर का स्लाइड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया था फ्लक्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर. यस, वी हैव जस्ट ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, सॉरी ये तो डायग्राम से. यस, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था, आपको याद होगा ये स्लाइड. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंपैरिजन में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किया था इस तरह से. तो इसमें यहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है और अगर एरिया इस तरह से परपेंडिकुलर है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली डिफाइंड एज द इंटेंसिटी इनटू एरिया. ये फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इन द सेम वे हियर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया. लेकिन अगर ये जो एरिया है वो अगर इस तरह से परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि थोड़ा टिल्टेड है ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरह से अगर ये टिल्टेड है एरिया तो उसका जो वेक्टर नॉर्मल है ये ds बार वो कुछ ना कुछ एंगल करेगा इस b बार के साथ. करेक्ट है. और वो जो भी एंगल करता है तो उसके हिसाब से हमको इस ds बार को रिजोल्व करना होगा दो कंपोनेंट्स में, जिसमें से ये ds cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो हमको कंसिडर करना होगा क्योंकि वही परपेंडिकुलर है इस मतलब पैरेलल है मैग्नेटिक इंडक्शन को, और वो कंसिडर करना होगा जिससे ही हमको ये डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी एस मिलेगा अगर वो परपेंडिकुलर है तो. लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो बी इंटू डी एस कॉस थीटा ये हमको फॉर्मूला मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए. और उसको अगर हम सपोज डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं बी बार डॉट डी एस बार. क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कि अगर अगर दो वेक्टर्स ए बार और बी बार अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंट रहते हैं तो उस केस में उनका जो डॉट प्रोडक्ट है तो वो हमेशा दिया जाता है इस तरह से ए बार डॉट बी बार इज एक्चुअली इक्वल टू ए बी cos theta. Means the product of magnitudes of both of the vectors multiplied by cosine of angle between them is actually the definition of dot product. And hence we can just express this d phi, that is the flux, to be simply equal to the b bar dot ds bar. लेकिन ये तो छोटे एरिया के लिए हो गया. अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, इरेगुलर एरिया है सपोज इस तरह से, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शंस में है. इस पॉइंट पे सपोज इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे किसी इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा कि अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एरियाज ड्रॉ करने होंगे. we'll have to draw small elements like this. So let us draw this small element here in this way. Here it will be like this and here it will be like this. And at every element we'll have to draw a vector normal like this. तो ये उसका वेक्टर नॉर्मल हो गया, ये इस एलिमेंट का वेक्टर नॉर्मल हो गया, और ये जो है ये इस एलिमेंट का वेक्टर नॉर्मल हो गया. तो हर एक एलिमेंट का वेक्टर नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है और उसका जो भी एंगल बनता है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो हमको यहाँ पे कंसिडर करना है. तो वेक्टर नॉर्मल रहेगा ds और मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे रहेगा b. तो b और ds इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम हर एक एलिमेंट पे कंसिडर करते जाएंगे, कैरी आउट करते जाएंगे. एंड वंस वी गेट द dot product of b and ds at every element, then we can just try to find out the magnetic flux passing through each of these elements. And once we get that, we can just add this and we can just get the final value of the flux to be simply equal to integration of b bar dot ds bar.
This is the significance of this formula. Okay, so the total flux is actually going to be the integration of b bar dot ds bar carried out over any every close every element here, every point. तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ए, ये पॉइंट सपोज बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर किए, उन हर एक एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स निकाल निकाल के उसको ऐड किया, तब जाके हमको टोटल फ्लक्स मिल गया इस पूरे एरिया में से पास होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये टोटल फ्लक्स मिलना होता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, phi is equal to integration of b bar dot ds bar for the magnetic field, and then we can just replace this here. तो अभी अगर हम यहाँ पे इस phi का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे रख देते हैं, तो we can just expect that the integration of b bar dot ds bar is actually going to be 0, and this is nothing but a statement of Gauss theorem in electrostatics, sorry, magnetism. Okay, तो this is the Gauss theorem in magnetism, remember. तो ये मैग्नेटिज्म के अंदर के गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये याद रखो अच्छी तरह से। यस, ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी हमको ये देखना है कि अर्थ का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका ओरिजिन क्या है, और एट द सेम टाइम व्हाट आर द consequences of Earth's magnetic field here. यस, उससे पहले हम एक सिंपल सा एनिमेशन देख लेंगे अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जिससे आपको कई सारी चीजें जो है वो क्लियर पता चलेगी। यस, सी द एनिमेशन, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। Okay, so see here, we can just see the bar magnet and a pointer or a magnetic needle, and also you can already see the magnetic field produced due to this bar magnet here, which is from north to south like this. So yes, so if you suppose move a magnetic needle at different points here, अच्छा just wait, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो just see this here, I think this is more clear. Yes, okay, so you can just see that here the magnetic field is just directed from north pole to south pole here. तो ये नॉर्थ पोल है, रेड कलर से जो दिख रहा है वो एक्चुअली नॉर्थ पोल है, और जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकलता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे। और अभी अगर इसमें देखते हैं तो if you just move the magnetic needle at any point, then it will always point in the direction of the field actually. Okay, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम रख देंगे उसको मैग्नेटिक निडल को, तो इट विल जस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइक दिस। तो ये एक्सिस पॉइंट पे है, देखो ये एक्सियल पॉइंट है, तो इस एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन कौन सा है, इट इज जस्ट सेम एज द पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे एक बात समझ सकते हो आराम से कि मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस will actually be directed from south to north, right? तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। सो यहाँ पे इस एक्सिस से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का भी डायरेक्शन कैसा है, देखो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इन द सेम डायरेक्शन हियर। इवन इफ यू जस्ट टेक दिस मैग्नेटिक नीडल, इस मैग्नेटिक नीडल को अगर हम लेके जाते हैं यहाँ पे, सपोज ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है तो वो बिल्कुल सेम ही है, जो कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक मोमेंट को पैरेलल है, इसको हम एम बार बोलते हैं, बराबर। एम बार मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हियर। और अगर यही
मैग्नेटिक नीडल अगर हम लिफ्ट करके लेके जाते हैं इक्वेटर वाले पॉइंट पे, ये देखो ये वाला पॉइंट इक्वेटर पॉइंट पे है। अब यहाँ पे देखो ठीक से कि मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन किधर है। इफ यू जस्ट सी हियर that the magnetic induction is actually directed in this direction here, करेक्ट है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन है, जबकि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में है, देखो ठीक से। तो ये दोनों ऑपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसीलिए देखा जाता है कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट द मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट, बट एट द एक्सियल पॉइंट द मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। रिमेंबर दिस करेक्टली, ओके। एंड एट द सेम टाइम ये भी हम समझ सकते हैं आराम से कि जैसे मैग्नेट को अगर हम मूव करेंगे तो उसके साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होगा जरूर, ठीक है। जितना हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होगा, एंड अकॉर्डिंगली द मैग्नेटिक नीडल विल आल्सो शो द डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस वे, ओके। नाउ लेट अस सी द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हियर। अभी ये तुमको पता होना चाहिए कि अर्थ इटसेल्फ इज अ जायंट मैग्नेट, ओके। अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और उसी की वजह से क्या होता है कि देखो ये अर्थ का जो, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, जैसे देखो ये तुमको पता होगा ऑलरेडी, ये जो ऊपर वाला जो रीजन होता है कि नहीं, यस, ये जो ऊपर वाला जो पोल होता है उसको हम एक्चुअली ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये एक्चुअली नॉर्थ पोल इसको कहा जाता है, और ये जो है इसको साउथ पोल कहा जाता है। लेकिन मैग्नेट के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो ऊपर वाला जो पोल है वो एक्चुअली साउथ पोल है, और नीचे वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है ऐसा कि अगर कोई भी निडल अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, कोई भी एक मैग्नेटिक निडल अगर हम रख देते हैं यहाँ पे, तो वो मैग्नेटिक निडल हमेशा उसका नॉर्थ पोल जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। मतलब ये देखो ये मैग्नेटिक निडल अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस तरह से, तो उसका जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कि एक्चुअली अर्थ का साउथ है, लेकिन उसको हम अर्थ का नॉर्थ बोलते हैं ज्योग्राफिकली, करेक्ट है। और ये जो मैग्नेटिक निडल का जो साउथ है वो एक्चुअली नॉर्थ को, नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं अर्थ का साउथ पोल एक्चुअली। ये अर्थ का साउथ पोल, ज्योग्राफिकली साउथ पोल बोला जाता है उसको, लेकिन वो है एक्चुअली नॉर्थ पोल। और जिसको हम ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल बोलते हैं वो एक्चुअली साउथ पोल है, मैग्नेट के हिसाब से साउथ पोल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है अच्छी तरह से, जो कि इंपॉर्टेंट है। यस, और यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि अगर यहाँ पे हम मैग्नेट रखते हैं तो वो इस तरह से अट्रैक्ट होता है अर्थ की वजह से, और हॉरिजॉन्टल रुका रहता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी अगर हम ये अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, सपोज इमेजिन करो कि यहाँ पे इक्वेटर पे अगर हम इस तरह से खड़े हैं, तो हमारे लिए ये जो मैग्नेटिक निडल है वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया। दैट मीन्स द मैग्नेटिक निडल विल जस्ट रिमेन हॉरिजॉन्टल इन दिस प्लेस, एट इक्वेटोरियल प्लेस हियर, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, थोड़ा अगर ट्रैवल करेंगे यहाँ पे इस रीजन पे अगर चले जाएंगे, तो हम देख सकते हैं आराम से कि अब देखो इस रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम हॉरिजॉन्टल रीजन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये है एक्चुअली, करेक्ट है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, but if you just see there the magnetic needle doesn't remain horizontal, it remains in the direction of north south, no doubt, लेकिन it will make some angle with the horizontal, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल कुछ ना कुछ एंगल वो करेगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ, और वो एंगल भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल के करीब जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर चले जाते हैं, देखो ठीक से, तो यहाँ पे ठीक से देखो कि इस मैग्नेटिक नीडल का जो बना हुआ एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसे मार्क करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द surface of earth at that plane, at that place. So surface of earth is like this, so horizontal will also be like this, right? So if this is a horizontal, then this magnetic needle is actually making some angle here at this place, right? This angle will actually be called as the angle of dip. Remember, what is angle of dip? The angle of dip is the angle made by the magnetic field of earth with the horizontal at any place, okay? तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होता है कि मैग्नेटिक निडल का इस
यस, मैग्नेटिक निडल का या मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बना बना रहता है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं, और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, बराबर। तो इसलिए इन दोनों के बीच में का जो एंगल यहाँ पे बनता है, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप, विच इज डिनोटेड बाय थीटा हियर। And this angle of dip can be found out experimentally if we just take a magnet and just suspend it by tying it with the rope or just thread। एक थ्रेड के साथ इस किसी मैग्नेट को अगर हम उसको बांध के अगर लटका देंगे, तो वो नॉर्थ साउथ तो रुकेगा नो डाउट, लेकिन इट विल नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल ऑलवेज। एट सम प्लेसेस लाइक दिस इट विल जस्ट मेक सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, कुछ ना कुछ वो एंगल करेगा, और वो एंगल एक्चुअली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहलाता है, और कभी कभी एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं उसको। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट नॉर्थ पोल? अगर हम यहाँ पे मतलब अर्थ के ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल पे अगर चले जाते हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना रहेगा? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स फास्ट। यस, हाउ मच विल बी द एंगल ऑफ डिप हियर? देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वेयर इज द हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन इज दिस, करेक्ट है। एंड इफ यू जस्ट सी द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स, राइट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे डायरेक्शन, ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जरूर 90 डिग्री हो गया, but we have to remember that it should be minus 90. Okay, yes, 90 is the correct answer, but it should be accompanied with the sign also, because it is going to be in the downward direction. Yes, and if suppose we just take it in the south pole, अर्थ के जोग्राफिक साउथ पोल के ऊपर अगर हम उसको लेके जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ये देखो यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा? फिर से हमको 90 मिलेगा, लेकिन अगेन at this point here it will be plus 90. It is supposed to be plus 90 just because it is the angle which is made by the magnetic needle with the horizontal। अब यहाँ पे horizontal ऐसा है, लेकिन यहाँ पे magnetic field कैसा है अर्थ का? इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम प्लस 90 बोल सकते हैं। नो डाउट दोनों तरफ 90 है, मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है वो, बिल्कुल। एंड इफ यू जस्ट आस्क दैट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप at the equator, if suppose this magnetic needle is taken at the equator here, यहाँ पे इक्वेटर पे लेके जाके अगर हम उसको रख देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स फास्ट। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप इन द इक्वेटर? सॉरी, हाँ, इक्वेटर, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा? यस, वेरी गुड, 0 डिग्री इट विल बी हियर, नो डाउट, because if you just see here, then horizontal line here will be actually like this, right? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, वो भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक निडल निडल जो है वो बिल्कुल जीरो एंगल करेगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रहेगा इक्वेटर पे। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज द 0 डिग्री हियर इन दिस केस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डिप। बट अभी हाउ विल यू मेजर दिस एंगल ऑफ डिप हियर? ये एंगल ऑफ डिप हम मेजर कैसे करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यस, उसका डायग्राम शायद मेरे पास है। Yes, this is the instrument which is used to measure this angle of dip actually. Okay, just focus on this instrument. What does it do?
सी हियर, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है देखो ठीक से, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये मैग्नेटिक नीडल है एक्चुअली। ओके, और ये मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल फ्री है, इट इज जस्ट पाइवोटेड एट दिस पॉइंट हियर। पाइवोटेड मतलब इट इज फिक्स्ड एट दिस सेंट्रल पॉइंट हियर। यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे वो यहाँ पे फिक्स्ड होता है, इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट हो सकता है ऐसे। तो अभी इस केस में अगर इसको हमने इस तरह से यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट अगर फिक्स करके रखा, तो क्या होगा कि जब हम उसको इक्वेटर पे लेके जाएंगे तो इट विल जस्ट रिमेन हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, इट विल शो 0 डिग्री एंगल इन दिस वे। ओके, ऐसा हॉरिजॉन्टल बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम उसको किसी अलग अदर प्लेस पे लेके जाएंगे, जैसा कि हम अभी इक्वेटर से दूर जैसे जैसे लेके जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका एंगल ऑफ डिप जो है वो बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स इट विल मेक अ डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड इट विल जस्ट रिमेन लाइक दिस। कभी वहां पे हो सकता है कि वो 25 डिग्री दिखा रहा है, या कभी हो सकता है कि वो ऐसा 30 डिग्री दिखा रहा है, या कभी कभी वो इस तरह से 45 डिग्री जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो वैसे भी दिखाएगा। तो ये जो रीडिंग है यहाँ पे, ये जो स्केल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, वो स्केल एक्चुअली क्या मेजर करता है, एंगल मेजर करता है। और वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल मेजर कर रहा है, इसलिए ये वाला एंगल हमको मिलने वाला है। इसी को हम एक्चुअली एंगल ऑफ डिप बोल सकते हैं आराम से, बिल्कुल। That means this means that the Earth's magnetic field at this place is going to be directed in this direction here. ओके, यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक इंडक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो वी कैन जस्ट कॉल इट एज बी हियर। बी मतलब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो यहाँ पे बी से हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। और अभी उसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, अगर सपोज हमारे पास ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, suppose this is the magnetic induction of earth which is directed like this in some direction which is making an angle theta with the horizontal, ठीक है। तो इसको अगर हम सपोज रिजॉल्व करेंगे, तो इट कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, one of which will be horizontal actually and the other one will actually be vertical like this। तो इस तरह से ये दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे अर्थ के ये जो दो कंपोनेंट्स है, इनको हम बोलते हैं, देखो ये ऐसे कंपोनेंट्स है जिनका वेक्टर सम जो है वो यही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से yes, so these components will actually be called as horizontal and vertical components of earth's magnetic field। This horizontal component of earth's magnetic field will actually be called as bh, उसको हम bh से डिनोट करते हैं, याद रखो ठीक से। और the vertical component of earth's magnetic field is actually denoted by bv, remember। and the earth's magnetic field means magnetic induction of earth actually is denoted by b here। तो b, bh और bv ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बनता है वो ऑलरेडी हमको पता है। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, which is actually called as the angle of dip, which is same as here, which can be measured by this instrument here। So if we just know this angle delta here, then we can say that अगर ये पूरा BH BV है, ये वर्टिकल साइड अगर BV है, तो जरूर ये वर्टिकल साइड भी तो BV रहेगा, उसका ऑपोजिट साइड जो है वो तो इक्वली रहेगा कि नहीं। ये देखो, इसको भी हम BV बोल सकते हैं जरूर, yes। And since this in this triangle, if you just apply the formula for tan डेल्टा, ठीक है, तो अगर tan डेल्टा का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा देखो ठीक से। सो यू कैन जस्ट गेट दिस tan डेल्टा टू बी सिंपली इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो ऑपोजिट साइड कौन है यहाँ पे, इट इज BV, ओके। एंड एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ पे, इट इज BH।
So therefore we can just get this tan delta is equal to BV upon BH. तो ये एक एक्सप्रेशन हमको तैयार मिल गया tan delta के लिए, no doubt. And at the same time, this B actually can be expressed as the sum of square root of sum of square of this BH and BV here by using Pythagoras theorem simply. So you can just say that this B square is actually going to be equal to BH square plus BV square because of the Pythagoras theorem. And in the next step, we can just write this as B is actually equal to root of BH square plus BV square. Correct है? तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, BH square plus BV square. And at the same time, this BH and BV can also be expressed in terms of B here, B and theta here. तो अगर इस BH और BV को अगर हमको एक्सप्रेस करना है in terms of B, तो being this BH a horizontal component, we can just write this BH to be simply equal to B into cos theta. Okay. We can just justify this from the definition of cos theta itself. Cos theta का definition क्या होता है? Adjacent upon hypotenuse. तो adjacent कौन है? BH है और hypotenuse तो B ही है. तो इसलिए cos theta will be actually equal to BH upon B here, and sin theta will actually be equal to opposite upon hypotenuse, right? So opposite कौन है यहाँ पे? BV है. डेल्टा का opposite है, तो डेल्टा का opposite यहाँ पे BV मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको sin theta is equal to BV upon B itself, so that we can just write this BV to be simply equal to B into sin theta. Okay, so this is actually going to be the formula for BH and BV in terms of B and theta, and these are the formulae for B and theta delta in terms of BH and BV. Actually यहाँ पे delta होना चाहिए, correct? This theta should not be there. Instead of that, we should write it as delta actually. Yes. Okay, so this is all about the Earth's magnetic field and its components, horizontal and vertical components in this way. Okay, so let us stop this lecture here. See the next topic in this lecture next time, but most probably next time, next lecture में हम numerical start करने वाले हैं. Okay, so just remember all the formulae from this chapter and also the concepts, so that we can just go with the numericals in next lecture. It's tomorrow. Okay. Yes, so let us stop here. Thank you all of you.